Hi, Janvi, can you hear me? Yes, ma'am, I can. Okay, can you see the slide change on the screen? I can see the slide number 2 right now. You can see two. Okay. 1 minute. Can you see the slide changes going on? Yes, ma'am, I can see. Okay, all right. Cool. Yes. We'll start in a couple of minutes because there are two more students going to come. Okay. Okay. Janvi, did you receive the message for face test, which is on? September 7th. Yeah, I did. Okay. So the topics: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, synonyms, idioms. You've done all this. Yes. Okay. Offline students as well. You need to be prepared with all the chapters that we've done so far. Do we have to practice from the book that we've been sent or the PDFs? You can practice from both. Okay. The PDF that we sent you later on, that is more effective. Although, if you want more practice and if you want a concrete matter or a material, you can also refer to the book. Okay, okay.
Okay. Hi, Bhargav. Good evening, ma'am. Good evening. How are you? I'm fine, ma'am. Okay. Before conjunctions, we are going to start. We are going to continue with the idioms thing. In the previous class, I had shown you few images. Based on that, we all guessed what the idiom could be, and then we discussed the meaning and the usage. Today, I have another PPT where I am going to do the same thing. Okay. But today it's going to be more thematic. It's going to be restrictive to numbers. Numerical idioms meaning ऐसे idioms जिनमें numbers included है 1 2 3 4. Okay, ma'am. Too early to arrive. Where is your sister? Okay. ठीक है. तो ऐसे idioms उनके मीनिंग में नंबर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. उसके यूसेज में भी देयर इज नथिंग रिलेटेड टू नंबर्स एज सच. It's just उस idiom में we have numbers, so it's easier for us to memorize. That is why I have made this thematic series. Okay. पहला सीरीज है न्यूमेरिकल जिसमें नंबर्स होंगे. दूसरा सीरीज है जिसमें यू कैन कंसिडर वेदर से रिलेटेड, जैसे रेन हो गया, कोल्ड हो गया, वट एवर इट इज, उसके रिलेटेड जो इडियम्स होते हैं. देर आर सम इडियम्स जिनमें एनिमल के नेम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एनिमल बेस्ड हो गया. टुडे वी आर डूइंग नंबर बेस्ड. ओके. नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं है. Why it's not moving on the next slide? Yeah, okay. Can you see the slide shift, online students? Yes. Yes, ma'am. Okay. Which idiom is this? मतलब I would suggest you all to write these idioms क्योंकि ये बुक में नहीं है. लिस्ट बना लो. Write the idiom and the meaning. vocab में. But since it's not there in the textbook, तो मैंने मंगवाई नहीं because we are doing it from this itself. तुम्हारे पास बुक नहीं है? स्पेयर बुक. टेक्स्ट बुक के अंदर लिखोगी. टेक्स्ट बुक में जगह मिल जाती है लिखने की. जी ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्यों बनाएंगे हम? वाओ. एलआर और क्यूए की बुक बनाई है. कहाँ सॉल्व कहाँ करते हो अगर एलआर की क्यूए की बुक नहीं है तो? और एलआर की नहीं. वी वर वेटिंग फॉर सेलिब्रिटीज लाइक यू. चलो बैक टू स्क्वायर वन, मतलब फिर से शुरू करना. ठीक है. एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया है. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्लियर है? ये उसका मीनिंग से सेंटेंस है. ठीक है. when the thing you try doesn't work, so you go back to the beginning. फिर से शुरू करना. And this is the sentence जो dark blue में दिया है. We tried advertising in the paper, but then the paper closed down, so we are back to square one again. हाँ हाँ न्यूज़पेपर. मतलब How we will recognize this by picture? ये पिक्चर, हाँ. ये तो मैंने ऐसे ही रेफरेंस के लिए डाला. एग्जाम में वैसा है. एग्जाम में नहीं है. टीचर ने recognize नहीं, एग्जाम में पिक्चर होगा ही नहीं. हम एग्जाम में लिखते थे जरा कैसे है
सेंटेंस में यूसेज दिया होगा और उसका मीनिंग पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्टली इडियम दिया होगा और उसका मीनिंग पूछा जाएगा। यस, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी एमसीक्यू। पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा। कुछ कुछ कॉलेजेस में नेगेटिव मार्किंग भी है, और मैं ही है सब में नहीं है। अचीवमेंट में दिया था जो प्राइवेट कॉलेज, क्या कर रही हो? Why? Will you be able to write? अब बुक तो है नहीं वैसे। Is it comfortable? ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में किस तरह से आएगा कि या तो सेंटेंस में वो इडियम यूज करके दिया जाएगा और दे विल आस्क यू द मीनिंग, इट कैन बी वाइस वर्सा, या फिर बिना सेंटेंस के दे विल डायरेक्टली गिव यू द इडियम एंड दे विल डायरेक्टली आस्क यू द मीनिंग, या फिर Meaning मीनिंग दिया दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू द अप्रोप्रिएट इडियम फॉर दैट। क्या याद करके नहीं जाओ? कोई भी मीनिंग दिया मीनिंग थोड़ी याद करनी, इडियम याद करना है। बढ़िया याद कर लेते हैं समझ नहीं आ रहा या पोस्ट लोग ओके, नेक्स्ट। तो दूसरे को लिखना था हाँ, तो मीनिंग लिखो ना, इडियम और उसका मीनिंग लिखो। लिख दिया? अपने वर्ड्स में इन शॉर्ट भी लिख सकते हो, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है। ये मैंने फॉर रेफरेंस पीपीटी है ये, ठीक है? शुड आई मूव अहेड? यस वन साइज फिट्स ऑल। ये इडियम को हमें लिटरली नहीं लेना है, लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है इडियम में से। सो यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज करने के इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी यूज ओके, टेलर मेड का मतलब पता है? टेलर मेड टेलर मेड मतलब ऐसा लिटरल में नहीं, नॉट लिटरल। हाँ चलो, इवन इफ वी से लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है उसका? टेलर मतलब from the start scratch it has been made ओके the using the ओके, तो अगर हम मॉल जाके एक कुर्ता खरीदते हैं तो इज दैट टेलर मेड? no it is ready made it's ready made हाँ, तो जो मॉल में मिलता है दैट्स रेडीमेड, क्योंकि अगर मैं वो पहनूंगी, तुम पहनोगी, हो सकता है तुम्हें भी वो आ जाए, फिट आ जाए, हो सकता है मुझे भी वो फिट आ जाए। दैट इज नॉट टेलर मेड। टेलर मेड मीन्स कस्टमाइज्ड, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वन साइज फिट्स ऑल। समझ में आया? तो इसको हम, देयर इज अ मीम हियर, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ इज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। रोट लर्निंग एवरीवेयर इन ऑल द बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ऑल द एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो, इडियम्स में तुम्हें रोट लर्निंग करने के लिए बोलती हूँ, वो कैडबरी सिनोनिम्स रोट लर्निंग करने के लिए बोलती हूँ। दैट्स नॉट माई कॉल, दैट्स द गवर्नमेंट्स कॉल। ठीक है? सो दैट सिस्टम इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है? दिस इज द मीनिंग। ये सेंटेंस में यूसेज दिया है, यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल। Idiom will be we only have one problems. क्या? Idiom will be we only have one problems. ईडियम? I'm sorry, like ये फोटो पे मत जाओ, ये फोटो मैंने यूज मोस्टली मीम से उठाया है, फोटो पे मत जाओ। वो सेंटेंस का एग्जांपल दिया, रीड दैट। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन प्रॉम्प्ट मी इमीडिएटली। आगे बढ़े। yes वेरी इजी, बी इन टू माइंड्स। डिल्यूशनल मतलब delusional Two thoughts. different perspectives two perspectives I'm a little confused balance कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। delusional का मतलब डिल्यूशनल नहीं, इन डिलेमा। दो delusional का मतलब क्या Gen Z, not Gen Z. डिल्यूशन इज Thinking about facial analysis.
It is a psychological condition जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है. Face like a city. It's not true, it's fake. She's a children. For example, if a person is not intelligent, but if they think that they are delusional. Okay? ठीक है. When you are confused, when you do not understand what to do, which way to go, कौन सा ऐसा poem है जिसमें ये fame Shit. John Keats, The road not taken. The Road Not Taken by John Keats, one of my favorite poems. ठीक है. I am in two minds about booking a holiday this summer कि मैं कहाँ जाऊँ. मैं सिंगापुर जाऊँ या इंडिया में ही कहीं जाऊँ. तो be in two minds. This can be used in different scenarios, different context में use कर सकते हैं. यहाँ पे summer holiday के लिए use किया, vacation के लिए use किया, हम उसको exam में भी use कर सकते हैं. I am after during my grade 10 board examinations, I was in two minds to select which stream I should go forward with. तो किसी भी situation में जहाँ पे there are more than one options and you are confused, you can use the idiom. ठीक है? Put two and two together. बहुत usually together we can To do. put a thing together. It's a No, puzzle. It's a puzzle. close, Together. but how do we use it? Well, What is together the we can solve the problems. Put all the facts and clues together. हाँ, okay. Together we can solve problems. To solve a problem. Make a guess based on what you have already heard or seen. मतलब मैंने कहीं से कुछ कहानी सुनी और फिर मैंने guess किया कि oh based on that कहानी this is the theme. ठीक है, you can read the example. I heard them arguing last night and then I saw that his car wasn't outside the house. So I put two and two together. मतलब that they are not together now. उनका झगड़ा हो गया है, breakup हो गया है. That is breakup हुआ है या नहीं हुआ है, I don't know. I just put two and two together by guessing that उनका झगड़ा हुआ है and they were not together last night. तो आज शायद breakup हो गया हो. In those situations you can use two and two together. और scenarios में भी use कर सकते हैं. Okay? या फिर एक कंपनी में एक कलीग एक हफ्ते से छुट्टी पे है and that colleague said that he or she is not well. लेकिन इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरीज तो गोवा की हैं. So you can, by putting two and two together, you can come to a conclusion कि उसने मतलब like should we do scenarios different we are thinking something so we are telling to yes can say ठीक है. It's a conclusion. very हाँ. अच्छा, ये तो हिंदी में भी ये मीम डाला है मैंने, तुम्हें रीड करना है तो कर सकते हो. एग्जाम्पल भी है. this one two. One story. Janvi and Bhargav, please keep writing all these idioms. Yes, ma'am. Okay. These are not there in your textbook or in the vocabulary book में तो है ही नहीं और अलग से pamphlet भी नहीं दिया है. So please make sure to make notes. Okay? एक definition है this. हाँ वही है. हिंदी में एक तीर से दो निशान है, इंग्लिश में kill two birds with one. What is it? Story. हाँ. Okay. It takes two to tango. Is double time. हिंदी में बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती. अच्छा two fight मतलब like one person is not doing anything two person are doing something. It requires two. It takes two to tango. वही meaning है इसका. ठीक है. If a problem involves two people, Takes two tang it takes two to tango. नहीं, एक एक वर्ड का मीनिंग पे मत जाओ. Go on the whole phrase. पूरे idiom के मीनिंग पे. 5 done. We are going to do 10. नहीं पर पीछे जाओ ना. Beyond cloud and To be above. proud. ये नीचे सेंटेंस दिया है और ये मीनिंग है. ठीक है. ब्लैक मीनिंग, नीचे ब्लू में सेंटेंस है. Okay. Beyond cloud. Very happy. Cloudy. Wow. Such a wow situation. Cloud. Very happy. When you are very happy, when you are excited.
सेंटेंस देख लो. Ever since she heard the news, she has been. कोई भी खुशी की बात होगी, then you can use this idiom. This is idiom, na? Even since she. Sorry. This is examples. Ever since she heard the news, she's been on cloud. मतलब क्लास जैसे तुम लोग करते हो ना असाइनमेंट के टाइम पे. असाइनमेंट करते ही. वेरी गुड. क्लास हो गई हाँ. क्लास A dime a dozen. A dime a dozen. lesson one. But a good guess. Good guess. कोई चीज जो बहुत कॉमन होती है, that is a dime a dozen. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर अ डाइम अ डजन एट द मोमेंट. आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वेरी कॉमन. दे आर डाइम अ डजन. ठीक है. कितने हुए? 9 हो गए. On all fours. Very easy. You've seen a kid crawling. घुटने और हाथ चारों limbs फ्लोर पे होते हैं. That is quite literal on all fours. ठीक है. फोटो में डायलॉग जो है वो रीड कर लो. यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट हाउ इट इज यूज्ड. और यहाँ पे मीनिंग दिया है रेड में. ठीक है. डन. हम कितने idioms हैं? अभी तो आज टुडे वील ओनली डू 10. इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विद द अदर सेट. एक ही में खत्म करूं. ग्रामर कब करवाऊंगी? Used for finding very hardly or this word, this idiom. नो. इट कैन बी यूज इन एनी सिचुएशन. वो तो एग्जाम्पल दिया है कि उसको उसकी रिंग नहीं मिल रही थी तो उसने ऐसे नीचे झुक के she was on all fours to find the ring. Done. Done. Online students, have you written? Yes. Yes, ma'am. Okay, cool. Be ready with your conjunctions PDF. Tell me the page number no, of prepositions. 11. Conjunctions we did in the last class. याद है कुछ? नहीं लाए? हाँ conjunction का answer. आज पेन लेके आए हो तो वो नहीं लेके आए. Conjunction. वाओ. ऐसे कैसे निकाल ली? इसमें होमवर्क भी नहीं था इसमें तो निकाली क्यों? आप प्रेजेंट करोगे स्क्रीन पे. ये गया क्यों नहीं अभी तक? जानवी and Bhargav, can you see the screen? Yes. Why Yes, is it- ma'am. स्क्रीन से क्यों नहीं हट रहा फिर? परफेक्ट.
Preposition is basically, जल्दी से reshuffle हो जाओ. Prepositions is basically it is focused on the noun and pronoun in the sentence. ठीक है? Sentence में noun और pronoun can be a subject, it can be an object. तो जो subject और object पता है ना क्या होता है? The doer and the receiver. Doer और receiver, action के doer और receiver के बीच में जो relation बिठाना होता है, वो कौन करता है? Preposition. ठीक है? इसका literal meaning goes on to denote the position of something. ठीक है? However, इसके types के according, it can also denote time, it can also denote direction, it can also denote movement, it can also denote the exact position. ठीक है? जो major, there are जो confusion होता है, जो main trap होता है, जहाँ ज़्यादा mistakes हो सकती हैं, it is in or at. It can be used for time, it can be used for place, both. ठीक है? कहीं जाना है, मुझे एक लोकेशन मिली है, कहीं पहुंचना है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का नाम अगर दिया है, तो वहां हम at यूज करेंगे. कोई काम करने के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग टाइम हो, वट एवर इट इज, एक पर्टिकुलर टाइम अगर दिया हुआ है सेंटेंस में, देन ऑल्सो हम at यूज करेंगे. ठीक है? However, I don't know it will be visible or not. No, it will not be visible. ऐसे भी तो बोलता है कि I should be on time. हाँ, उसमें पर्टिकुलर टाइम दिया ही नहीं है. जब से पर्टिकुलर हो तभी मैच. Yes. जब पर्टिकुलर टाइम दिया होगा only then. 6:37. Yes, exactly. प्लेस के लिए भी वही. However, in और on हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं. जब थोड़ा सा ब्रॉड सिनेरियो होता है, टाइम स्पैन दिया जाता है, तब हम इन यूज करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ईयर हो गया in 1997, in 2004. ठीक है? ब्रॉड टाइम स्पैन होता है, तब हम इन यूज करते हैं. ऑन हम कब यूज करते हैं? फॉर डेज and dates. Days and dates on Monday, Tuesday, Wednesday, whatever. Dates 15 December, whatever the date is. ठीक है? Turn on the fans, no? यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल दिया है, he arrived at noon. Noon मतलब 12 PM. That is why at use हुआ है उसके लिए. ठीक है? हाँ. There is an exception in night or at night. कोई रैंडम नाइट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इन नाइट. ठीक है? एट नाइट की बात करें तो वो किसी एक स्पेसिफिक एक्शन जो एक स्पेसिफिक रात में हो रहा है, देन वी यूज एट. अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ एक पर्टिकुलर रात के टाइम में, देन वी यूज एट नाइट. रैंडमली अगर मैं नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी एक्शन, रैंडमली अगर मैं किसी रात के बारे में बात करूँ कि ये काम रात में होना चाहिए, ठीक है, कि हमें डिनर रात में जल्दी कर लेना चाहिए या फिर रात में जल्दी सो जाना चाहिए, कोई जनरल सिनेरियो हो, देन वी यूज इन नाइट. Can you give an example of in night? But we don't say that we should do dinner in night. We don't say that. वो तो एक्शन स्पेसिफिक हो गई ना.
डिनर जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक हो गया. जनरल टर्म्स में इफ वी से आई थिंक ऑफ इट एंड लेट यू नो. सोच के बताती हूँ. In night. इन नाइट. हाँ, Primary part. ठीक है. जो मैंने 3 टाइप्स बोले प्रपोजिशन के, प्लेस Time. Time. Location. एंड डायरेक्शन. अभी डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों साथ में ही कंसिडर होते हैं. ठीक है. प्लेस और डायरेक्शन, प्लेस और मूवमेंट में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. जो preposition ऑफ प्लेस होता है दैट इज स्टैटिक. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है दैट डिनोट्स मूवमेंट ऑब्वियसली एज द वर्ड सेज. अब मूवमेंट कैसे हुआ? अगर मैं बोलूं के टेबल के ऊपर एक कैट बैठी है, या फिर अगर मैं बोलूं के ये बॉटल मुझसे लेके टेबल पे रख दो, तो ऑन द टेबल पहले से पड़ा हुआ है तो ऑन, या फिर बॉक्स के अंदर पहले से है तो इन. ठीक है. बट इफ यू शो द मूवमेंट, अगर एक्शन मूवमेंट वाला होगा तब हम इनटू या ऑन टू यूज करेंगे. ऑलराइट. अबव बिलो, सेम डिफरेंस. अबव अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है? अबव इज स्टैटिक, ओवर इज मूवमेंट. बिलो इज, बिलो और अंडर दोनों ही स्टैटिक हैं, पर बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है? Above starting है और stop. स्टैटिक, STATIC, इट इज स्टिल, स्टेशनरी. और उसका movement वाला कौन सा होगा? ओवर या अक्रॉस. Starting का word starting है. अरे starting मतलब stationary ना, वो मुझे ना दूसरा कौन सा word? अबव. Above. और below और under same ही starting. ये ऑन इन ये सारे स्टैटिक में आएंगे. below और under भी. बिलो और अंडर भी स्टैटिक में आएंगे. preposition ऑफ प्लेस कहते हैं उसको. बिटवीन अमंग में क्या डिफरेंस है? between मतलब एकदम बीच में और और अमंग इज जब हम दो बिटवीन, जब हम दो जन को करें Hmm. between. Only two is between, more than two is among. If I say कि I'm giving you a sheet to distribute between yourselves, is that right? among us. हाँ, among आएगा. ठीक है. amongst आएगा ना. Among and amongst both are correct. एक American English है, एक British English है. Both are same. Amongst is a little informal. Among is formal. However, wide usage among ही होता है. Amongst बहुत rarely लोग use करते हैं. Beside का मतलब होता है next to. There's another word with S. Besides वो क्या होता है? besides this मतलब इसको छोड़. besides मतलब मेरे दोनों बाजू. और beside मतलब मेरे एक बाजू. है? beside. एक छोड़कर besides, मतलब मेरे बाजू में एक जन और उसको छोड़कर. मतलब इसको छोड़ के. तुम्हारे बाजू में अगर ये बैठी है तो यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू हर, तो वो beside जो तुम्हारे वर्कशीट में दिया हुआ है. इफ आई से besides, तो उसका मतलब होता है इसको छोड़ के, इसके अलावा, in addition to this. It is not a preposition. It is not used as a preposition of place. It is used to show ideas or concepts when you want to say के हम जो Harsha is sitting beside Moksha. yes. Harsha is sitting beside. Besides use होगा ही नहीं ना, beside ही होगा. Besides is not a preposition. तो इस केस में besides का इस केस में यूज ही नहीं होगा. अरे besides को तो Besides का मीनिंग है इसको छोड़ के ना ये. हाँ, ठीक है. नियर बाय. पास में. हाँ. इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड. सामने. आगे पीछे. preposition of movement डायरेक्शन एक बार देख लो. इसलिए कोई आपको क्या नहीं है?
हमको guess करना थोड़ी आएगा कौन सा proposition। नो यू विल जस्ट, तुम्हारा एग्जाम में फॉर्मेट क्या रहेगा, स्पॉट द एरर। सेंटेंस दिया होगा जैसे हम यूजुअली करते हैं, वील हैव, spot there। हाँ ज्यादा पे spot there नहीं होगा। मोस्टली पूरा पेपर ही स्पॉट द एरर होता है, किसी किसी में फिल इन द ब्लैंक होता है, या फिर उसके अलावा ग्रामर के अलावा आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टू कहीं पहुंचने के लिए वी यूज टू, इनटू ऑनटू मैंने बता दिया, फ्रॉम कहां से कहां जाना है उसके लिए भी यूज फ्रॉम, हाँ ओरिजिन के लिए भी यूज करते हैं जैसा यहाँ लिखा है। थ्रू किसी से पास होता हुआ, दैट आल्सो शोज मूवमेंट। ठीक है, अक्रॉस उसको पास करके जाना, उसके ऊपर से पास करके जाना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे रोड क्रॉस करके हॉस्पिटल जाना है, तो अक्रॉस द हॉस्पिटल इज अक्रॉस द रोड, नॉट थ्रू द रोड। थ्रू मतलब उसके अंदर से होते हुए जाना, वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द, वी आर नॉट गोइंग अंडरग्राउंड। ठीक है, अलोंग, अलोंग मतलब साथ साथ, मूविंग बिसाइड समथिंग लॉन्ग, उसके साथ साथ चलना। अप डाउन, these are opposites but it shows what, movement। preposition of time एक बार देख लो जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिफोर आफ्टर इज वेरी इजी, ड्यूरिंग और while में देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, अब वो सिनेरियो के साथ ही पता चलेगा, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट विद द मीनिंग क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, while हम लोग जनरली पास्ट को बोलने के लिए करते हैं ना। While the war was going on. कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज करते हैं while। for, since और for we all know we use it in tense। कौन से टेंस में यूज करते हैं हम since for? चार टेंस में यूज करते हैं, नहीं 3 टेंस में यूज करते And since 1980 like past में use करा दिया। हैं। past perfect सब past perfect past perfect, Past continuous. past simple past tense simple continuous past continuous past 1 minute, okay there are total 12 tenses, ये पता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों के 4 और टेंसेस हैं। उन टोटल 12 टेंसेस में से तीनों के एक टेंस है जिसमें हम सिंस फॉर यूज करते हैं। कौन सा वो tense? past perfect नहीं, अभी तो आपने हाँ बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम अच्छा टेंस मैंने करवाए नहीं है तुम लोग, हाँ एलिवेट में कराए 12th कराए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उसका फॉर्मेट होता है हैज बिन आईएनजी या फिर हैव बिन आईएनजी डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, उसका फॉर्मेट में हम हैज हैव बिन यूज करते हैं प्लस जो वर्ब होता है आईएनजी। सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद दिस इज द वर्ब पार्ट, उसके बाद जो एक्शन जो हो रहा है वो कब से हो रहा है या फिर वो कितना टाइम लगा उसको होने में। टू डिनोट दैट वी यूज अ टाइम ड्यूरेशन सिंस फॉर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? I have been learning classical music since 10 years. या फिर I have been learning classical music for many years. Time period तक duration. एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम अगर दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है काम का, तब हम सिंस यूज करते हैं। पूरा ड्यूरेशन या पूरा टाइम स्पैन दिया है तब हम फॉर यूज करते हैं। दुकान में लिखते हैं ना since 2000 since हाँ, 10 years। सिंस 10 years रॉन्ग है, फॉर 10 years क्योंकि वो पूरा ड्यूरेशन हो गया।
10 years पहले चालू किया था, ये बात नहीं हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं बोलूं कि मैंने आज But now, तो restaurant लिखते हैं, वो since 2000 लिखते हैं, for 2000 थोड़ी ना लिखते हैं। हाँ तो भाई ना। हाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो भी काम तुमने चालू किया, कब से चालू किया? 2000 से चालू किया, ठीक है? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उस काम, वो काम स्टार्ट कब हुआ? 2000 से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, दैट इज व्हाई वी यूज सिंस। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन जब से भी स्टार्ट हुआ, वी डोंट नो दैट अभी तक कितना टाइम हुआ, देन वी यूज फॉर। ठीक है? एट क्लियर है? इन we use for years, seasons, parts of the day. This is exception जो मैंने अभी बताया नाइट का। ऑन स्पेसिफिक फेस्टिवल्स होते हैं, डेज होते हैं, उनके लिए हम ऑन यूज करते हैं। बिफोर आफ्टर वी ऑल नो। ड्यूरिंग से on दिवाली और दूसरे से in दिवाली। डिपेंड्स। अगर तुम एक दिन की, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड नॉट जस्ट ऑन वन डे। एक दिन को अगर फोकस करके बोल, एम्फसाइज करके बोल रहे हो तो ऑन। इफ यू टॉकिंग अबाउट द होल 10 day और 5 day थिंग, देन इट्स इन। सेम गोज फॉर क्रिसमस। कुछ कुछ जगहों पे क्रिसमस 1 week का सेलिब्रेशन होता है, ईद से लेके पूरा 10 दिन या 7 दिन। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट के व्हाट आर यू कन्वेइंग, उस पर डिपेंड करते हैं कि इन आएगा कि ऑन आएगा। ठीक है? बाकी सारे फेस्टिवल्स तो 1 day के ही होते थे, यूज ऑन। तो सेम चीज। ठीक है? टिल और अंटिल में क्या डिफरेंस है? पर until वाला until I achieve this तब तक मैं ये नहीं करूँगा। और same ही है। Time period ज्यादा है complete. नहीं, ज्यादा या कम के लिए नहीं। मोस्टली इफ ऐसे तो सेम ही है, बट एक थिन लाइन डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल का आ जाता है। टिल इज इनफॉर्मल, अंटिल इज फॉर्मल। Until you choose. अंटिल इज फॉर्मल। अनलेस और अंटिल में कंफ्यूज मत होना। अनलेस में कंडीशन होती है। तो साथ में बोलते हैं नो, दैट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। There are only few rare situations when we can use until and unless together. वो examples मैं बाद में दूंगी, but it's very rare. Grammatically it's wrong, क्योंकि जहां पे तुम एक एक्शन का कंडीशन भी बता रहे हो और टाइम लिमिट भी, डेडलाइन भी दे रहे हो, सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं। Until हम डेडलाइन के लिए यूज करते हैं, till भी हम डेडलाइन के लिए यूज करते हैं कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। Unless में there has to be a condition. If condition होती है ना, if that's there in the sentence, then we use unless. Ma'am, if you have given both until and till in the option, which one do we choose? ऐसा नहीं, then you have to look at the purpose के condition है या time limit है। Okay. से unless and until और से until है values। Unless and until. Until Unless and until. not complete the silent. Yeah, until and until। See, in conversational English, you speak it's okay, but grammatically it's wrong. But Give me your sentence. until I do this and not unless I finish the homework, I won't be allowed to go out. Until and unless you We don't finish our super. We won't be allowed to go out. हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन भी है और कंडीशन इज के काम नहीं किया तो जाने नहीं मिलेगा, और एक डेडलाइन दिया है कि अगर जाना है। नहीं, यहाँ पे डेडलाइन कहाँ है? डेडलाइन है ही नहीं, तो अंटिल आएगा ही नहीं, मैम सिर्फ until until आया है कि वो नहीं किया जब तक वो दैट्स अ कंडीशन। अगर होमवर्क नहीं किया तो जाने नहीं मिलेगा, जब until क्या होगा तक इट्स अननेसेसरी ओवर हियर। मैम व्हाट विल बी until यहाँ पे until until का एग्जाम
until का एग्जाम्पल यहाँ दिया है ना, wait until Friday, open till कोई चीज अगर दुकान खुली है, this shop is open until midnight या till midnight, या फिर wait until Friday, I'll get back to you. तो उसमें एक डेडलाइन दिया है. But now they wait until Friday and get back to you. So now we will wait till Friday and get back to you. हाँ, both are correct. अगर मैं यही सेम चीज अपने बॉस को या कलीग को बोल रही हूँ तो until बोलूंगी, फ्रेंड को बोल रही हूँ तो till बोलूंगी. Formal and informal language difference, that's it. Okay. What happened? हाँ. बात का पर डाउट है. किसमें? The team comprises of 5 members. That's incorrect. कहाँ दिया है? नीचे. One teacher. 14 page में लगा नीचे. Incorrect, correct. हाँ, Ma'am, the team comprises of 5 members. सही कर. बता रही हूँ. There are some prepositions जो सिर्फ particular words के साथ आते हैं. Those words can be verbs, nouns, कोई और form of speech भी हो सकता है. यही सेम चीज हम verbs के साथ भी करते हैं. एक particular verb के साथ एक particular word ही ऐड होता है, एक particular preposition ही ऐड होता है. उसको हम phrasal verbs बोलते हैं. Here, since we are doing preposition का chapter, we will be doing prepositional phrases. तुम्हारे vocab की textbook में phrasal verbs करके पूरा chapter है. Phrasal verbs तब उस chapter के साथ हम prepositional phrases वाला chapter mix करके करेंगे. ठीक है? जो यहाँ पे table दिया है मैंने, accused of, believe in, depend on, just go through this once, because यहाँ पे जो words दिए हैं उसके साथ जो preposition mix up किया है उसके बिना, if we replace that preposition with something else, either the meaning changes or it's incorrect altogether. तो वो preposition fix हो गया है. So it becomes like a phrase, prepositional phrase. ठीक है? तो good के साथ हम हमेशा at ही use करते हैं. My sister is good at arguing, whatever. ठीक है? Interested in, listen to. एक बार ये टेबल देख लो या वॉच इट आउट. और ऐसा बोलते कि water is made of carbon dioxide and hydrogen. या हम ऐसा बोलते water is made of और made up of में क्या डिफरेंस है? बोथ आर करेक्ट. पर इसमें जो कंप्राइजेस ऑफ का डाउट था ना, कंप्राइज और कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ हम ऑफ यूज करते हैं लेकिन कंप्राइज के मीनिंग में ही ऑफ है. जैसे अनलेस जो मैंने अभी बताया, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इट हैज नेगेटिव मीनिंग इन इटसेल्फ. तो हमें सेंटेंस में नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है. सेम वे कंप्राइज के मीनिंग में ही ऑफ है, तो हम उसके साथ preposition ऑफ नहीं लगाएंगे. अगर लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ठीक है? आपको मतलब होगा कंसिस्ट. जो water वाला सेंटेंस है उसको कैसे बोल सकते हैं कि water is made out of carbon dioxide? नो. Okay. After going through that table, warm up exercise है, basic preposition है. Start solving after you are done. There are only 25. We'll discuss after you are done. Okay. Janvi and Bhargav, any queries in this chapter up till now? No, not No, now. ma'am. Okay. Start solving the exercise, warm up exercise.
I believe that. कितना हुआ जानवी भार्गव? The dog, I'm finished with. Okay, great. Bhargav, what about you? Finished it, ma'am. Yeah, going on. To the beach, yeah, like it was small, which is not in the park, the park. In the park, Let's quickly discuss so that we can at least solve Just 2 minutes. in the park. fast. We need time. Because I want to do at least 5 questions from the next exercise so that I can give you homework to complete. On the moon. At the moon. As a moon. We get the 10 or 7 the fact is that beneath the beneath you know from under or beneath the ground. Same नहीं होता? Mostly तो same ही होता है. Again, it's beneath. What's the difference between below and under? There are 3 row options here, under, below, or beneath. खतरनाक question in the sentence मैंने ही बनाया खतरनाक question. the cat is hiding dash the bed below, under, or beneath. Under. Very hard. कैसे Right. तो मैंने आपसे पूछा से बोला देखो. Below is हम बोलते हैं ना कि below this level साइंस लैब में बीकर्स होते हैं उसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं तो वो एक लेवल के नीचे अगर हमें कुछ दिखाना होता है ठीक है उस केस में हम बिलो यूज करते हैं. अगर ये तो हो गया डायरेक्ट लिटरल. अगर हम फिगरेटिव यूज कर रहे हैं तो अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी थिंग या चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस टेबल के नीचे कुछ रखा है उठा लो तो वो अंडर होगा बिकॉज देयर इज अ गैप. एकदम जहां गैप होगा दैट इज बिलो. जहां गैप नहीं होगा तो वो अंडर. नहीं समझ आया? नहीं आया. Okay. इसमें करते हैं Where there's a gap, it would be under, right? Like under a table, there's a gap. या मैंने उल्टा बोल दिया. जहां गैप Yes. अंडर. जहां गैप नहीं है मतलब अगर पूरी तरह कवर कर रहा है उसको देन इट्स बिलो. फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट के नीचे कुछ रखा है तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कवर कर दिया है पूरे देन इट्स बिलो. और अगर ऐसे ही नीचे रखा है एंड यू कैन पीक फ्रॉम द साइड दिख रहा है देन इट्स अंडर. अभी भी नहीं समझ आया? अब समझ आया? हाँ ठीक है. चलो. द कैट इज स्लीपिंग under. Sorry. on the sofa. She lives In in dash the mountains. between होना चाहिए यार. Among The mountain एक ही थोड़ी दो ही होंगे. Mountains. In the 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 Your mountains is the place. yeah. तो in the mountain के अंदर कैसे रह सकती है? She lives between. It's not inside the mountain. It's the in the mountain. mountain. जैसे घर mountain पे होते हैं. Among the mountains. Among the mountains नहीं in the mountains. Mountains in the mountains. तीनों कलर का सकता है. Between दो के बीच में होगा. Between among नहीं होगा in होगा. Here mountains is considered as a place. जैसे small village एक place है वैसे mountains place है. पूरा लैंडस्केप की बात की है. माउंटेन एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात नहीं की है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. At 10 a.m. dash Friday on Friday. Dash is two sisters. Between.
Interested In. in. Interested के साथ in आता है. We did that. Pay for. She arrived On. at. She arrived at. At. And. It's a particular fixed place. At the airport exactly at noon. No. My birthday is On. on. किसी का आता है अक्टूबर में? Ma'am, we also sometimes say you have to by noon, right? By 2 o'clock. So what's the difference between at and by in that context? By tells us the deadline कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए. कि ये काम हो जाएगा. That Okay. shows a possibility or the clarity of the time action का. Okay. Yes. Where were we? Nine. He jumped Into. into. He jumped in the swimming pool. Movement अगर movement होगा तो into. And if it's into या onto depending on the. Question. और in सिर्फ statically. क्या कर रहे हो तुम लोग? In सिर्फ statically. Give me the phone. मैम गिरने वाला था. We saved our phones. What do you play kung fu? हाँ. मैम In गिरने static वाला था. in Yes. in statically use करते हैं. हाँ. In static के लिए होगा. We walked across. Hello. The train passed through. She is good at. He works for. At. In the city center. in the city center. मैम अगर हम ऐसे भी बोलते थे he works with a big company. With big company सब काम करता है. For a big company. Sounds better. But sounds Sounds better की बात नहीं है. It depends on the designation of he. कि he employee है या फिर partner है. But we don't know that. Exactly. Don't So know that. how do we decide it's for or at? For is a better. It Sounds it better. goes unsaid. No sounds वाला वो नहीं है. Sounds better. It usually क्या बोलते हैं उसको? It's unsaid. It goes just by saying कि ऐसा ही होता है usually. That is why. ठीक है? Okay. नहीं समझना. क्या नहीं समझना? Introduce क्या जगह city center. ओके सो बहुत सारे प्लेसेस का ऐसा होता है कि इन भी लगा सकते हैं एट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एम्फेसिस. अगर मैं बोलूं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, ठीक है, तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कश्मीर इज अ स्पेसिफिक प्लेस. बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उस जगह को और एक फिक्स जगह है. कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो मैं उत्तरांचल या उत्तराखंड या फिर हिमाचल या पंजाब उसमें काउंट नहीं होगा. वेरी स्पेसिफिक. तब हम एट यूज करेंगे. लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं, मैं कनाडा में बैठ के बोल रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर कश्मीर जाऊंगी, तो मैं इन बोलूंगी क्योंकि कनाडा के लिए कश्मीर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड इट्स नॉट मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस. तो इट डिपेंड्स कॉन्टेक्स्ट पे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन भी लगा सकते हैं एट भी लगा सकते हैं. यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है डैश द सिटी सेंटर, ही वर्क्स फॉर अ बिग कंपनी. अब सिटी सेंटर क्या है? इट इज अ प्लेस फॉर दैट कंपनी. ठीक है, सिटी सेंटर कहीं भी हो सकता है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए हमने इन यूज किया. अगर मेंशन किया होता, ज्यादा एम्फेसिस दिया होता, इफ इट वर टू बी मोर स्पेसिफिक तो हम एट यूज करते. क्लियर? They talk for us. 4 hours On on the phone. I saw it standing at the. For that. नहीं, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है.
Okay. I saw him standing at the bus stop. The dog ran across. It's a prepositional phrase. Put the flowers. Okay. In the base. In the Was it that funny that you're still laughing? I'm समझ नहीं पा रहा अरे मैं समझ गई. I'm just trying to. Comprehend. 17th. In फटाफट. the base. In the base. Into. In the bus. In. It's static. Mark into क्यों नहीं? Okay, नहीं है. क्योंकि into movement के लिए होता है. अब तो flash पर रख के उसमें action में तो put is you just keep it, no? ऐसे रख के छोड़ दोगे. It's not denoting position. Sorry, it's not denoting क्या बोलते हैं movement. But there is action involved. Yeah, but there is action involved. I'm giving you an instruction. Put your pen on your palm. Onto your palm. Is it correct? Put your pen on your palm, not onto your palm. Yeah. आम के ऊपर. ठीक है. In the base. तो इसमें literal meaning जाने देखो काम के ऊपर. और क्योंकि वो ये समझ आता है. क्योंकि ये phrase नहीं है, prepositional phrase नहीं है. Okay. He apologized. अच्छा, we were going On a trip on a to trip the beach. to the beach. He apologized for playing And In the park. in the park. In the in park. and नहीं आएगा. She poured Into. water In Into the class. into The window is hanging on the wall. on the wall On he arrived In London. in London on a cold. on a cold morning. We depend On him. The cat is hiding under the bed. We depend on him. The cat is hiding under. We have still how many minutes? We end. It's 2024. 6 minutes. 6 minutes. Ma'am, that quiz of yours. Guess who? Which quiz? Oh, vocab. Oh, I'll have to search for that PPT right now. हाँ हो गया था वो तो हो गया था सारे कर लिए इसमें. Okay. We can do 5 of this and then rest homework. One weekend idioms. One weekend full this homework. We've only done one warm up. Exercise भी कौन सी हमने warm up वाली की है. Ma'am, very long हो गया हमारा. चलो. Experiment. The manager accused him for not completing the report on time despite having all the necessary data. What's the error? Of not completed. Correct. 4 will be replaced. Ma'am, but in IBM at this time will become because there will be options from. So ये करने का मतलब क्या? वो 12th में आएगा प्रैक्टिस. ये अभी तुम 11th में हो तो ये प्रैक्टिस चल रहा है. ये बेस क्लियर होगा. Only then you will be able to do that. Two whole college students. Married to. Third वाला. We spent an hour discussing. About जैसे comprised के साथ off नहीं आता वैसे discussed के साथ कुछ नहीं आता. It's just discussing the proposal about निकल जाएगा. It's redundant. It's unnecessary. two. Yes, forward to. Yes. Though she is good in At. playing. Good at. Very good. He silently entered. 5 done. We'll do that. Time तो हुआ नहीं. Gender. He silently entered in the room.
नहीं सही है Entered के साथ कुछ नहीं आता. अरे Entered the room. ठीक है. In the office, I was taking about I usually walking We've done this in adjectives. at the office. I prefer walking to the office. Adjectives में if you remember, I told you that किसी position या post वाले जो adjectives होते हैं उसके साथ हम than नहीं लगाते, to लगाते. Superior, inferior, old, young. ठीक है. Okay. Same thing prefer के साथ हम than नहीं लगाते, to लगाते. I usually, आप ऐसा I usually prefer walking to the office to taking the crowded. Yes. But why is it? Why is that incorrect? It's But not grammatically. why is that अरे incorrect? दोनों एक सेकंड, दोनों टू का अलग मीनिंग है यहाँ पे. What you are saying? Why is that incorrect? Because it's English grammar rule. Breed of dogs. हाँ, afraid of. Into. Into. On. Onto. Into नहीं होगा, onto. Into. On time. On time. You remind me of flight attendant जो instructions repeat करते हैं. वो आपकी वो लाइक नहीं करता बहुत ऐसे हमें इरिटेट करता है वो तेरी लाइक के इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है She is solely responsible of organizing the entire cultural fest this year. नहीं तो मैं बोल रही हूँ. We still have 2 minutes. It's 28. चलो she is solely responsible for Organizing the entire cultural fest this year. solely Responsible for, correct है. Of की जगह for आएगा. The novel is beautifully written and divided in 3 unique parts. into 3 weeks. Correct. Into. He insisted to staying. On staying. On staying. He has been absent in school. In school. This is preposition and conjunction mix. Why? From, but how can we? In school. In school. From maybe not done. He has been absent from school since Monday. सही तो है. I'm sorry. In school. He has been absent in school. In school. School में वो नहीं था. In school. From school. School से गायब है. नहीं आया. In school. Okay. Conjunction error. Though he seemed. तुम्हें सही है हम दो और ऑर्डर में फर्क नहीं होता दो और although का मीनिंग सेम होता है बट सिंटेक्स वाइज दोनों का यूसेज अलग होता है. Syntax wise मतलब सेंटेंस में फॉर्मेशन. तो इधर दो भी सही है और दो भी सही है अब देखो आप he has been absent in school since Monday though he seemed perfectly fine last week भी सही है फिर next he has been absent in school since Monday although he seemed perfectly fine sweet क्या वाला दिमाग लगा कुछ नहीं अरे कुछ नहीं ऑल्दो इज करेक्ट पर अगर हमें दो लगाना है तो हमें इवन दो लगाना पड़ेगा. हाँ एक मिनट he has been absent in school since Monday though he seemed perfectly fine ग्रामेटिकली रॉन्ग. क्या गलत अब even दो और दो तो इधर आप ऐसे देखोगे ना तो सही है ना आप अगर इधर हटा के देखोगे ना तो सही लगेगा
दो हमेशा यूजुअली हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि लास्ट नाइट जहाँ मैं डिनर पे गई थी द फूड वॉज रियली बैड पर एक डिश डेजर्ट वॉज रियली गुड. ठीक है, तो इसमें दो आएगा कि और दो आएगा? यूज बोथ इन द सेंटेंस एंड टेल मी. दोनों आ सकता है. That's what I'm saying. Use it and tell me. We went to dinner. Last night the dinner was pathetic, Even although the dessert was amazing. ठीक है? या फिर last night the dinner was pathetic, the dessert was amazing though. Last में हम use करते हैं. but don't. या फिर the dessert was really great though the rest of the dishes were pathetic. कौन सा क्वेश्चन है? Although और दो में डिफरेंस समझा रही है. अच्छा, ठीक है, हाँ आया समझ? हाँ. तो मैम मेरा ऑल तो सही. यहाँ पे या तो ऑल्दो आएगा, ऑल्दो सही है, या फिर इवन दो. 15th. Ma'am, time over. हाँ हाँ, last 15th. The principal was extremely angry At this. with the student. क्यों with आएगा, at नहीं आएगा? Next class में बता. Suspense. With people we use with, and with situations and ideas we use angry. Object पे कैसे होगा? हर्षी. कॉन्सेप्ट पे या आइडिया पे होगा ना, तो उसमें हम एट यूज करते हैं या ऑन यूज करते हैं. चलो, होमवर्क इज रेस्ट ऑफ द वर्कशीट. 2 एक्सरसाइज है, 2 और 3 दोनों खत्म कर देना. थैंक यू वेरी मच. 3 में ऐसे क्वेश्चन है. 3 में यू हैव टू स्पॉट द एरर. उसमें करेक्शन नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू स्पॉट द एरर. जो एरर है दैट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, ओके. Janvi and Bhargav, did you understand the homework? Yes. Yes, ma'am. Okay, you all can leave. Thank you. Bye bye. Okay. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.